exams are literally 2 months away, and now is exactly the time when you should gear up and give it your all. Even if you've been studying the entire year, and even if you have not studied anything pura saal, now is the time where you need to put in maximum of your effort, because this time matters the most for your board exam result. Hey guys, I'm Ashika and I'm a CBSE 10th grader, and in this video I will break down exactly what strategy I'm going to use in these 2 months to prepare for my board exam. I will break down the monthly strategy, the weekly strategy, and also the everyday strategy, so that you can also make the perfect plan to prepare for your board exams. Because अगर तुम aimlessly पढ़ाई करने वाले हो, then you're definitely going to get stuck at an average result. So it's very important to study with the right plan and the right strategy, and to organize everything so that you're totally sorted. So without wasting any more time, let's get right into the video. Be sure to subscribe to my channel if you haven't already, because that motivates me a lot. And also follow me on Instagram. I'll put in my ID right over here. Anyways guys, now let us get right into the video. सबसे पहले आई विल गिव यू ऑल अ लिटिल अपडेट अबाउट हाउ माई स्टेटस इज अपनी पढ़ाई को लेकर. हमारा एक प्री बोर्ड एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, जिसका रिजल्ट हमें अभी तक नहीं मिला है, बट जब हमें वो रिजल्ट मिल जाएगा आई विल मेक अ प्रॉपर रिजल्ट वीडियो फॉर यू ऑल. एंड आई ऑल्सो टेल यू ऑल मैं अपना पेपर बोर्ड एग्जाम का मैं अपना प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसे एनालाइज करती हूँ, सो दैट आई नो एग्जैक्टली वेयर आई एम लैकिंग एंड एग्जैक्टली वेयर आई नीड टू वर्क अपॉन. एंड या सो एक प्री बोर्ड्स हमारे हो चुके हैं, एंड माई सिलेबस हैज ऑल्सो लाइक बिन कम्प्लीटेड. आई हैव डन माई सिलेबस एक बार, एंड देन आई हैव ऑल्सो रिवाइज द इंटायर सिलेबस once again for my pre-board exams. Also guys, we have our second round of pre-boards in December, so I feel like that might affect my preparation थोड़ा सा. जब ये वाले pre-boards हुए थे, I did not like how I had to do the same subject for 3 days continuously. I feel like if instead of pre-boards, like जो first pre-board हुए हमारे, instead of pre-boards, if we had constant revision tests, it would have been more efficient for everybody. क्योंकि syllabus ही हमारे स्कूल में एक हफ्ता पहले खत्म हुआ था, and उसके अगले हफ्ते से एग्जाम्स भी हो गए थे full syllabus के. So it would have been much better if we had revision tests first, and then we had the pre-boards which we're going to have in December, because उसके लिए बच्चे और ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं, and उसके लिए बच्चों के ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ पाते हैं उस pre-boards में. बट अभी फिलहाल हमें इन वाले के मार्क्स मिले नहीं है. जब मिल जाएंगे आई विल शेयर उनको तुम सबके साथ. बट या तो फिलहाल हमारे अगले दिसंबर में प्री बोर्ड्स है, सो दैट माइट हैम्पर विद द स्ट्रैटेजी दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई सेल्फ. बट लेट मी टेल यू व्हाट दिसंबर इज गोइंग टू लुक लाइक. So for me, December will mostly focus on revision and on focusing on my weak topics, and वो topics जिनमें मेरे इस वाले प्री बोर्ड्स पे सबसे ज्यादा मार्क्स कटे हैं. एंड योर दिसंबर शुड ऑल्सो लुक प्रिटी सिमिलर, बिकॉज यू डोंट वांट टू फोकस ऑन द स्टफ दैट यू ऑलरेडी नो रेली वेल, राइट. सपोज तुम्हारे जो हाफ ईयरली एग्जाम्स थे वो हो गए, लाइक नवंबर में जो भी तुम्हारे एग्जाम्स हुए हैं, एंड इफ यू हैव नॉट हैड एनी एग्जाम्स इन नवंबर, देन जो भी तुम्हारे लास्ट एग्जाम्स हुए हैं उसके बेसिस पे यू नीड टू जज योर सेल्फ. इफ यू हैव नॉट येट एनालाइज उस एग्जाम का पेपर, नाउ इज द टाइम टू डू दैट. एक्चुअली एनालाइज दैट पेपर एंड अंडरस्टैंड तुम्हारी कहाँ मिस्टेक्स ज्यादा होती है. And I am pretty sure all of us by this time know what we're good at and what we're bad at. हमको कौन से subjects पसंद है and कौन से subjects पसंद नहीं है. So now is the time to actually focus on the subjects that we're not that good at, because those are the subjects where we might lose our marks in the board exam, which might affect our overall percentage. क्योंकि देखो, बोर्ड एग्जाम में हर सब्जेक्ट 80 मार्क्स का आना है. हर सब्जेक्ट की वेटेज 100 होगी आउट ऑफ 500 जो तुम्हारी परसेंटेज बनेगी उसमें. सो वी नीड टू ट्रीट एवरी सिंगल सब्जेक्ट इक्वली. ऐसा नहीं है कि लाइक हिंदी है या फिर AI है या फिर इंग्लिश है, सो वी ट्रीट इट लाइक लेस कंपेयर टू जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक मैथ साइंस SSC. बिकॉज सी, मैथ साइंस SSC AI इस 4 में से तुम्हारा बेस्ट 3 लगेगा, बट जो तुम्हारे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है वो दोनों का मार्क्स एज इट इज लगेगा. सो यू नीड टू एक्चुअली फोकस ऑन दोज एज वेल. डू नॉट ओवरलुक देम. आई पर्सनली हैव बिन लुकिंग देम, लाइक आई हैव बिन इग्नोरिंग देम पूरे साल. सो नाउ आई नीड टू एक्चुअली फोकस ऑन देम सबसे ज्यादा दिस मंथ इन दिसंबर, क्योंकि मैंने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया पूरे साल में. आई जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ माई स्कूल, एंड आई डोंट रियली डू उन सब्जेक्ट्स का सेल्फ स्टडी घर पे. एंड एग्जाम में आई जनरली लूज मार्क्स इन दीज सब्जेक्ट्स ओनली. सो आई नीड टू एक्चुअली फोकस ऑन देम. एंड तुम्हें भी ऐसे सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने हैं जिन पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है.
Okay, so once we have done that, we need to identify the topics which we need to focus on more in those subjects. ऐसा भी हो सकता है जो subjects तुम्हें easy लगता है उसमें भी कुछ topics हो जो तुम्हें इतने अच्छे से नहीं आते हो. So we need to write down all of those topics on a piece of paper for every single subject, because that will be our weakness wala list, and everything which we have not written in that list is basically our strengths, stuff that we already know and we can revise like in January, and हमें December में उन पे उतना focus करने की need नहीं है. So once you have that list, now like you're already ahead of like 90% of the students, because they are ignoring their weaknesses, unlike you who have decided to identify them and actually work on them this month. Now see, when you're revising those chapters, you don't just need to reread your NCERT again and again, because that will not help you all at all. NCERT को बार बार पढ़ना is the worst way you can study. It is the least efficient way, it's the most time consuming way. देखो, you need to identify तुम्हें कैसे याद होता है. अगर तुम्हें लिख लिख के याद होता है, you need to write stuff down. Personally, I am someone जिसको लिख लिख के याद होता है. If I don't write stuff down, मुझे वो चीज़ याद नहीं रहेगी. So when I'm doing my quick recall, I don't do it in my head. I do it on a piece of paper. I personally feel like maximum people learn by writing only. So if that works out for you, let me know in the comments. But अगर तुम्हारा कोई और लर्निंग हैबिट है, देन लेट मी नो दैट इज वेल. इट वुड बी तुम्हें विजुअल से ज़्यादा अच्छे से लर्न होता है या तुम्हें बार बार बोलने से ज़्यादा अच्छे से लर्न होता है. आई पर्सनली जस्ट यूज एवरीथिंग सो दैट आई एम एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो सी, सपोज यू आर रिवाइजिंग अ पर्टिकुलर चैप्टर, तुम्हें उस पूरे चैप्टर को डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ने नहीं बैठ जाना है. एज आई सेड इन द बिगिनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम उस चैप्टर के क्वेश्चन खोलो. ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें चैप्टर बिल्कुल नहीं आता होगा, बिकॉज इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम प्रीटी श्योर एंड आई रियली होप तुम्हारा सिलेबस कुछ तो कंप्लीट हो चुका है, राइट? अगर तुम्हें वो चैप्टर बिल्कुल नहीं आता, यू नीड टू एक्चुअली वॉच अ प्रॉपर लेक्चर उस चैप्टर का सीरियसली. बट अगर तुम वो चैप्टर कर चुके हो, उसका एग्जाम दे चुके हो, उसके बाद दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पे जाओ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोलो उस चैप्टर के एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम honestly. Okay, don't look at the answers instantly. First of all, practice like 30-40 questions of that chapter. And अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, like leave that, but ये मार्क करके रखना कि तुमसे कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ है. Once we're done with that, we're going to check our answers honestly once again. If you've missed any pointer which you feel is important, write down that pointer beside that answer. Like जैसे teachers check करते हैं ना, like they tick if it's correct and they write down if something is missing. That is how you need to check your answers for yourself. And I have always had this habit to check my stuff on my own, because ever since I was a kid I've been doing this, and this has really helped me out a lot. So this is what we need to do. We need to check it for ourselves. Once we're done with that, we will know हमें उस चैप्टर के कौन से टॉपिक्स नहीं आते बिल्कुल भी. Then we are going to go to the NCERT and read those topics from the NCERT. देखो, अगर तुम्हें NCERT पढ़ने के बाद भी वो टॉपिक समझ नहीं आता, जो कि हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, then one, you could ask your teacher to explain them to you in a free period or something. Or if you don't want to do that, you could just go on YouTube, look it up and understand. YouTube पे सब कुछ मिल जाता है and तुम्हें 100% explanation मिल ही जाएगा. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि क्लास 10th की किसी चीज का explanation YouTube पे ना मिले. So you can look it up on YouTube. This is the time where you need to actually help yourself instead of feeling sorry for yourself अगर तुम्हें कोई चीज नहीं आता है. So that is what we need to do. We don't need to reread the NCERT again and again. And तुम्हारे जो previous year questions practice हो जाएंगे and तुम उनको कर पाओगे. Actually you will also get confidence उस chapter में. And अगर तुम्हें किसी particular chapter से डर लगता है, तुम्हें वो डर लगना भी बंद हो जाएगा. See, हमें एक और चीज करनी है. PYQs के साथ साथ हमें NCERT के इंडेक्स क्वेश्चंस, हमें NCERT के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, एंड हमें NCERT की एक्टिविटीज भी प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली फॉर साइंस, बिकॉज दे यूजुअली कम इन द एग्जाम एज इट इज. ओके, एंड इंडेक्स क्वेश्चंस तो तुम हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करो, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करो NCERT से, बिकॉज आई फील लाइक मेनी ऑफ अस जस्ट इग्नोर दोज क्वेश्चंस एंड वी डायरेक्टली मूव ऑन टू रेफरेंस बुक्स, एंड एग्जाम में वही क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड हमें वो नहीं आते हैं क्योंकि we have not practiced those questions. So that is why make it a habit to always practice in-text questions. दिसंबर में एक और चीज हमें करनी है, हमें हर चैप्टर के एटलीस्ट, मतलब चाहे जो चैप्टर हमें आते हो ना आते हो, डजंट मैटर, प्रैक्टिस द in-text questions, practice the back exercise of every chapter at least. This is the minimum you can do for yourself. Okay, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत कम टाइम बचा है. एंड मैथ्स के लिए आई डोंट रिकमेंड तुम NCERT करो अगर तुम NCERT ऑलरेडी कर चुके हो, बिकॉज
अगर तुम्हें एनसीईआरटी अच्छे से आती है, डोंट डू मैथ्स के लिए एनसीईआरटी, प्रैक्टिस ऑन अ रेफरेंस बुक, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चंस डिफिकल्ट आएंगे, वो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होने वाले हैं डेफिनेटली, बिकॉज लास्ट ईयर का पेपर वाज हार्डली एनसीईआरटी बेस्ड, इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, and that is why do not depend on the NCERT for maths. You could 100% depend on NCERT for SSC, but not for maths. Please don't depend on NCERT for maths. Get at least one good reference book. You could get R.D. Sharma, you could get R.S. Agarwal, एक, you could get M.L. Agarwal, कोई भी एक, तुम्हें कोई भी एक चाहिए, बहुत सारी मत लेना, especially अभी don't get a lot, just get anyone and complete that one book, okay? Just try to complete that one book this month in December, and that will be good enough for maths. बट इफ यू नॉट एबल टू डू उस बुक के क्वेश्चन, देन यू नीड टू नॉट इग्नोर कि तुमसे वो क्वेश्चन नहीं हुए तो उनको बस छोड़ देना है, नहीं. आस्क समवन कैसे करना है, आस्क अ टीचर, लुक देम अप ऑन यूट्यूब, यू कैन इवन आस्क ChatGPT टू एक्सप्लेन दीज क्वेश्चंस टू यू, बिकॉज दैट वे यू एक्चुअली एड्रेस योर प्रॉब्लम्स, you'll actually face your weaknesses and you're like letting yourself overcome them, you're letting yourself improve them. And जो तुमने लिस्ट बनाया ना उसमें टिक करते ना तुम्हें क्या क्या आ गया है, because that will also boost your confidence, that will make you feel so much more confident, because earlier you had a huge list of weaknesses but now you're checking them off one by one and you'll know how far ahead you are of everybody else already with this strategy. After that, जब तुम्हारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर ऑल ऑफ अस विल हैव आवर प्री बोर्ड्स इन दिसंबर, लाइक किसी के सेकंड प्री बोर्ड्स हो रहे होंगे, किसी के फर्स्ट प्री बोर्ड्स हो रहे होंगे. ड्यूरिंग आवर प्री बोर्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर गिविंग एवरी एग्जाम, कम बैक होम एंड एनालाइज द पेपर. समटाइम्स ऐसा होता है कि वी डोंट हैव टाइम टू एनालाइज द पेपर. बाय एनालाइज द पेपर आई मीन द क्वेश्चन पेपर, एनालाइज द क्वेश्चंस, आंसर शीट तो तुम्हारे पास है नहीं, राइट? सो डू दैट इफ यू डोंट हैव टाइम, लाइक अगर तुम्हारे कंटिन्यूटी में है एंड यू डोंट हैव एनी प्रेप लीव्स इन बिटवीन, देन व्हाट यू कैन डू इज व्हेन योर प्री बोर्ड एग्जाम्स आर ओवर, देन यू कैन analyze your paper, or even you can wait for your result to analyze your mistakes and everything, but you need to also analyze the questions, the pattern of questions that they gave you in the pre-board exam and the difficulty of questions, and try to practice similar questions. हाँ, अगर तुमसे कोई particular question नहीं हुआ pre-board exam में, जो definitely होने वाला है, ऐसा तो होगा नहीं कि you will be able to do every single question easily, then make sure to practice उसी type के और भी questions. Also guys, for literature, like both Hindi, English, जो भी तुम्हारे पास language है, प्लीज प्रैक्टिस अनसीन पैसेजेस एज वेल, डू नॉट ओवरलुक दैम, बिकॉज बहुत लाइकली कि है तुम उसमें भी मार्क्स लूज करो, बट दैट इज लिटरली लाइक सबसे स्कोरिंग चीज. हमारे स्कूल में बहुत मार्क्स कटते हैं अनसीन पैसेजेस में, बट आई बिलीव फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए इट्स द मोस्ट स्कोरिंग चीज, एंड आई वुड ड्रेड लूजिंग मार्क्स उसमें. सो मेक श्योर तुम इसकी बहुत प्रैक्टिस करो. एंड इन ग्रामर फॉर इंग्लिश, मेक श्योर यू प्रैक्टिस रिपोर्टेड स्पीच अच्छे से. वेट, आई डोंट नो तुम्हारे ग्रामर में क्या टॉपिक्स हैं, बिकॉज ऐसा हो सकता है यू हैव डिफरेंट इंग्लिश, आई हैव डिफरेंट इंग्लिश, वी हैव कम्युनिकेटिव इंग्लिश, ऐसा हो सकता है कि यू हैव लैंग्वेज एंड लिटरेचर, सो दैट कुड बी डिफरेंट. सो आई डोंट थिंक आई टॉक अबाउट लिटरेचर बहुत ज्यादा, बट या मेक श्योर टू प्रैक्टिस अनसीन पैसेजेस फॉर बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. एंड ये चीज अभी मैंने नहीं करी है, एंड आई नीड टू डू दिस. देखो, तुम्हें अलग से अनसीन पैसेजेस करने की कोई जरूरत नहीं है. जब तुम सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करोगे, उसी में तुम्हारी अनसीन पैसेज की भी प्रैक्टिस हो जाएगी. नॉर्मली जब मैं लिटरेचर के सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करती हूँ, आई जस्ट प्रैक्टिस लिटरेचर वाला सेक्शन, आई जस्ट प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक वाला सेक्शन जो हमारी बुक से आ रहा है, एंड द ग्रामर वाला सेक्शन. आई टोटली इग्नोर लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड द राइटिंग पार्ट, बट हमें ये इग्नोर नहीं करना है. एटलीस्ट प्रैक्टिस लाइक 5 फॉर इंग्लिश एंड हिंदी बोर्ड एग्जाम से पहले तक. मतलब ये चीज तुम दिसंबर जनवरी पूरा ट्रैक ऑन करके कंप्लीट कर सकते हो. इट डिपेंड्स, अगर तुम 5 अच्छे से कर लेते हो देन 5 आर सफिशिएंट, बट अगर तुमसे उन 5 में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, एंड यू कांट फिगर आउट द राइट आंसर इन द राइट टाइम. ऑल्सो व्हेन यू प्रैक्टिसिंग अनसीन पैसेज, मेक श्योर तुम एटलीस्ट 20 मिनट्स में दोनों पैसेज कर लो, because otherwise English का paper is really lengthy, and if not 20, max 30 to 40 minutes. I feel like 40 is too much. Try to wind it up in 30 minutes. Yeah, you could start कि तुम 40 minutes पहले complete करो, उसके बाद उसको नीचे लाके 35 करो, फिर 30 करो, फिर 25, फिर 20. Try to finish your unseen passage कम से कम टाइम में with maximum accuracy. This is what we need to get, ताकि हमारा इंग्लिश का पेपर छूटे ना, because it's going to be lengthy. Obviously English Hindi exam is always lengthy, so that is why we need to prepare ourselves accordingly, right? So make sure तुम जो भी प्रैक्टिस करते हो इस टाइप की, make it कि ये टाइम्ड प्रैक्टिस हो, so that you know तुम कितना फास्टली आंसर कर सकते हो. Even in maths, when you're practicing a sample paper, make sure you have a timer, not just maths, for every single subject. If you're practicing a sample paper, a previous year paper, anything, make sure you have a timer, a 3-hour timer, to ensure कि उसमें तुम्हारा पूरा पेपर कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं. Do you have time left for revision or not? Because if you don't, you need to speed up. Yes, you need to like make yourself all the better, then you know that there's room for improvement. अगर तुम्हारा पूरा पेपर कंप्लीट हो रहा है with like 100% accuracy, but it's taking you 4 hours, then there's literally no point, right? So make sure that you have a timer as well.
Now for January, your main aim should be practicing as many sample papers and as many previous year papers as you can. Maths and science के लिए try करना last 10 years के papers practice कर लो, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा difficulty आती है generally. Even for SST try तुम last 10 years के कर लो. See, इनको प्रैक्टिस करने में इट शुड नॉट टेक यू अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज इफ यू प्लान प्रैक्टिसिंग दीज पेपर्स प्रॉपरली देन यू विल बी एबल टू कंप्लीट देम विद इन द इंटायर मंथ. एंड एज आई सेड, इंग्लिश एंड हिंदी के 5 पेपर्स ईच एटलीस्ट कर लेना. बट या डू 5 इफ यूर एबल टू डू देम फ्लॉलेसली. बट अगर तुम्हारी मिस्टेक्स हो रही है काफी ज्यादा एंड यू थिंक दैट यू नीड मोर प्रैक्टिस, देन डेफिनेटली प्रैक्टिस मोर पेपर्स. लाइक इट्स टोटली अप टू यू. तुम जितना अच्छे से कर पा रहे हो ना, आई थिंक तुम्हें उतना लेस करने की जरूरत होगी. बट एटलीस्ट मतलब मैथ साइंस एसएससी के लिए लास्ट 10 years के कर लेना. आई प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स ड्यूरिंग माई ये वाले बोर्ड एग्जाम. इवन जब तुम्हारे ड्यूरिंग दीज प्री बोर्ड एग्जाम्स, जब तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम्स होंगे तब ऑल्सो ट्राई टू कंप्लीट थोड़े से प्रीवियस ईयर पेपर्स, सो दैट यू डोंट हैव टू डू ऑल 10 of them in 1 month एंड यू कैन डू अभी दिसंबर में 4 कर लो एंड जनवरी में 6 कर लो. लाइक दैट यू शुड प्लान तुम्हें कैसे अपने सैम्पल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स को करना है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैम. डू नॉट नेगोशिएट ऑन दैट. एंड जो सीबीएसई के इस साल के सैम्पल पेपर्स आए हैं न्यू पैटर्न पे, स्पेशली इन एसएससी एंड इन साइंस, मेक श्योर यू डू देम प्रॉपरली. मेक श्योर तुम्हें वो अच्छे से आते हो एंड मेक श्योर दैट यूर कंफर्टेबल विद दैट पैटर्न. एंड टू इंश्योर दैट यूर कंफर्टेबल विद दैट पैटर्न, प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स जो सेम पैटर्न पे हो. उससे तुम्हें ये समझ आ जाएगा इफ यू आर कंफर्टेबल इन सॉल्विंग द पेपर लाइक दैट. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, वी नीड टू इंश्योर जनवरी में हमारी स्पीड इंप्रूव हो. हमें लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लिख लिख के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें ताकि हमें एग्जाम में आंसर लिखना आए. देखो, बहुत डिफरेंट चीजें होती है. एक होता है तुम्हें टॉपिक समझ आ गया, एक होता है तुम्हें टॉपिक को एग्जाम में प्रेजेंट करना आता है. वो हमें जनवरी में इंश्योर करना है कि हम वो एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करते हैं, वो चीज हम सीखें. ठीक है, तुम अपना प्री बोर्ड का प्रेजेंटेशन देखना एंड मेक श्योर कि तुम जनवरी में उस प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने का ट्राई करो. इफ यू नीड अ स्पेशल dedicated video on presentation, I can give you that as well. I personally feel like my presentation is really good if I am not stressing during the exam. If I'm stressing during the exam, then even I can't help myself. But yeah, in January we all need to work on our presentation skills. अगर तुम्हारा सिलेबस ही लैक कर रहा है तो उस लैक को हमें जनवरी में ही फिल करना है. मेक श्योर तुम अपना कोई भी इनकम्प्लीट सिलेबस फेब में लेके ना जाओ. आई नो एग्जाम्स आर स्टार्टिंग लाइक फेब के हाफ टाइम के बाद, बट डू नॉट कैरी एनी इनकम्प्लीट चैप्टर्स इन फेब. मेक श्योर फेब से पहले तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो अगर अभी तक नहीं है. वैसे जो मैंने मैक्सिमम टिप्स दिया है फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड द सिलेबस एंड दे आर वंडरिंग व्हाट नाउ, हाउ टू मूव फॉरवर्ड now and how to revise now. So by keeping that in mind, I have given you all tips today. So yeah. And if you've been watching मेरी पुरानी videos, you would know that I always ask you all to make a mistake notebook. Now in January, we need to ensure कि हमारे mistake notebooks की जो भी सारी mistakes हमने लिखी हुई है वो हमारी कभी भी repeat ना हो. We need to make sure that we work on them as well. See, दिसंबर में हमें अपनी चैप्टर वाइज वीकनेसेस पे वर्क करना है, बट हमें जनवरी में अपनी मिस्टेक नोटबुक पे वर्क करना है. अगर तुमने मिस्टेक नोटबुक नहीं बनाई है देन दैट्स ओके. देन यू कैन जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड जो तुम्हारी उसमें गलतियां होती हैं उनको तुम इम्प्रूव करने का ट्राई करो. Also make sure you make these 1-page notes. They have been extremely helpful for me, and my 1-page notes are not the easy stuff. They're not the understanding वाला stuff जो तुम्हें probably आता होगा. They're the stuff जो MCQ में कभी पूछ लेते हैं, जैसे teeth का enamel किस चीज से बना होता है, इस type के questions. Those are the pointers which I generally forget, which I write in my 1-page notes. And it is very important that you also make 1-page notes for yourself because they will be extremely beneficial during revision. Like जब तुम board exam देने जा रहे हो, you can just quickly flip through the pages in your card to just quickly recall all of those things once again in your head to ensure तुम्हें याद है या नहीं. To ensure तुम्हारे ब्रेन में वो सब चीजें स्टोर्ड है जो तुमने याद किया है. यू नीड टू कीप ऑन रिकॉलिंग इट एट रेगुलर इंटरवल्स. सो आई फील लाइक इफ यू रिकॉल इट एक बार एग्जाम से पहले, दैट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल एंड उससे तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा. ऑल्सो एग्जाम के टाइम प्लीज डोंट डिस्कस विदाउट बिफोर गिविंग द एग्जाम, डोंट डिस्कस एनीथिंग अबाउट द एग्जाम विद एनीवन. डोंट आंसर अपने दोस्तों से कोई क्वेश्चन, डोंट आस्क देम एनीथिंग, जस्ट बी विद योरसेल्फ. डोंट टॉक टू एनीवन. ग्रीट कर रहे हो दैट्स फाइन, बट डोंट टॉक अबाउट द एग्जाम टू एनीवन बिकॉज यू ऑलरेडी रियली स्ट्रेस्ड एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द एग्जाम ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कोई नई चीज पता चल जाए जो तुम पढ़ के ना आए हो, एंड देन यू विल बी स्ट्रेसिंग एंड देन यू विल गिव दैट एग्जाम इन वो स्ट्रेस वाला माइंडसेट, एंड ऐसा हो सकता है तुम अपना एग्जाम इसी चक्कर में खराब कर दो. बट लेट मी शो यू माई 1-page नोट सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू मेक देम फॉर योर सेल्फ एज वेल. जैसे यहाँ पे मैंने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के 1-page नोट्स बनाए हैं. एज यू कैन सी आई वाइंडेड देम अप इन 1 page ओनली.
and इसमें I've written everything that I generally forget in pointers, and how I revise it is that I read the sub topic, जैसे यहाँ पे stock लिखा है, and I say it in my head, then I read out क्या लिखा है इसमें to ensure जो मैंने अपने head में बोला वो same है इस चीज से, and that is how you can just revise it. And as you can see मैं थोड़ा सा statistical database में डाला है, because that's something that I generally forget, but you need to remember it for your exam, because just in case. So yeah, this is for exactly that. And as you can see मैंने बाकी chapters के लिए भी बनाए हुए हैं यहाँ पे. So फिलहाल मुझे SST वाले मिले, तो इसलिए मैंने तुम लोगों को SSC वाले ही दिखा दिए. Anyways guys, so that is it for today's video. Let me know what you want to see next, and do subscribe if you have made it this far, and like this video because it motivates me to make many more such videos. And make sure to follow me on Instagram. मैंने अपनी IT video के starting में दिखाई थी. And yeah, that's pretty much it. Bye bye.